Hello and welcome to your channel for creative studies. Today we will be doing an overview of the book or the course of BEGC 134, and this would be the last video before your exams. So this video might go on for a long time. So let's get started without any ado. So first unit of block 1 is introduction to the novel. Okay, so introduction to the novel, if you can see here that introduction is there, and here this part you can take a screenshot or you can mark it down that what is a novel. You have to define a novel if they ask that what is a novel, or rather defining a novel, what a novel might be. So they might ask a short question on answered on this, what is a novel, so you can write this. Apart from that, let's go ahead, like what is the origin and rise of the novel. So this thing can be asked that what are the different parts of the novel, like primary and secondary or literary. Okay, so the form or the order of a novel, so this is important. So what is an epic and what is all this, so this is also important. Just have a read through, and during the exam you just have to read and understand these things. And apart from that, you can see that what are primary epics. You can give just one example, or secondary or literary epics. So they might ask what is a primary epic or a secondary epic. So the novel has three predecessors. What is the ancestor of a novel before the novel came on? So that is an epic, romance, and a picaresque narrative. So epic, romance, and picaresque narrative, so these are the things. And apart from that, let's go on to the next thing. So here it is, types of novel. So types of novel is very important question. They have asked last year as well. They have asked extra-disciplinary novel and post-colonial novel. So apart from this, you can see here, you can mark these things. And apart from that, psychological novel, epistolary novel. Epistolary novel is very important for this time. So you can see the definition, what is an epistolary novel, and Pamela is an example. Apart from that, picaresque novel is also very important, that is Picaro or Rogue, so that is also important. You can see this, and these are the different types of novels of these type. So apart from this, I would just take you down to one more PDF, that is from BEGC 133. And here also BEGC 133 course, you will get the same thing on block 2 unit 1. There is a glossary, and if you see, there are some important terms for the question that you might be getting, like what are the different types of novel. So you can just see through it. That is block 2 unit 1 1.8 glossary. You will find this of BEGC 133 course. So novella, what is a novella, what is adventure novel, picaresque novel, fantasy novel, epistolary novel, graphic novel, historical novel, all these things are there. So you can have a look from the book. Okay, so this is it. Now let's get back to the course that we were studying. So these are the things you can refer to other courses as well, and from this you can learn that it is very important that whenever you are studying, you should also see that how you can link the other courses as well, so that you can, whenever if you have the examples or anything like that, it would be better for you. So this is the thing. Apart from that, there is literary trends in 18th and 19th century England. So here you can see that what is romanticism and what were the changes that were there. Then there is a prominent novelist of the age. So Pamela or Virtue Rewarded, it is written about this, who is written that. Okay, and these are the important names and everything. So from that, literary trends in 19th century England. So what were the changes that were there, and here you can see what are the writers and all these things. So you just have to go through it. And apart from that, literary trends in the 20th and 21st century. So what were the changes, what were the changes, like World War II happened and modernism on all these things. तो ये सब चीज़ आप देख लेना. यहाँ पर एजेस का एक चेंज है, इसीलिए बोला जाता है हर एक सेंचुरी में या हर एक एज में बहुत सारा चीज़ हुआ. लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर था,
पोस्ट मॉडर्निज्म था, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड था, तो ये सब चीज़ आपको देख लेना पड़ेगा। ये वाला ब्लॉक 1 यूनिट 1 का ये हो गया। उसके बाद आप नरेटिव, मैंने लास्ट क्लास में भी यही चीज़ समझाया था कि नरेटिव क्या है, ये आप चीज़ देख लीजिएगा। ऑफ हैविंग द नेचर ऑफ नरेशन इन स्टोरी फॉर्म, स्टोरी और अकाउंट, ये चीज़ का, ये आपका नरेटिव मोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ब्लॉक 2 यूनिट 2 से एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, ठीक है। यहाँ पर प्लॉट, कैरेक्टर, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव मोड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आप देख लीजिए कि हाउ ऑफ अ लिटरेरी जॉनरा वाइल कंटेंट कुड मीन व्हाट अ पीस ऑफ लिटरेचर हैज़ टू से। यहाँ पर हाउ और व्हाट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो कंपोनेंट है, यहाँ पर कंटेंट और फॉर्म के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप थोड़ा देख लीजिएगा, प्लॉट के बारे में है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको रीड करना है ये सब चीज़ का, ये बेसिक्स है। एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल का क्या है, इसके बारे में बेसिक है, तो ये जस्ट एक रीड कर लीजिएगा। मेन चीज़ ये यहाँ से स्टार्ट होता है प्लॉट। अब प्लॉट का क्या है, होता है प्लॉट के हिसाब से, ठीक है। प्लॉट क्या है इसके बारे में ग्रीक फिलोसोफर के बारे में बताया गया है, एरिस्टोटल के ऊपर में। तो प्लॉट क्या होता है, एक स्टोरी के ऊपर में क्या क्या चीज़ है, कैसे करके क्या होता है, ठीक है। प्लॉट, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। बेगला 138 के बुक में भी है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। तो आप ये चीज़ याद रखिए कि एक कोर्स से दूसरा कोर्स का भी बहुत सारा क्वेश्चंस इधर उधर से आएगा। तो प्लॉट वहाँ पर बहुत अच्छे से एक डायग्राम भी दिया गया है, 5 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से देख पाइएगा कि प्लॉट क्या है, ये चीज़ आप मार्क कर लीजिए, ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब टाइप्स ऑफ प्लॉट, जैसे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट। जैसे मैंने एक दिसंबर 2021 का जब पेपर सॉल्व कर रहे थे तब भी मैंने ये समझाया था कि लूज प्लॉट, ऑर्गेनिक प्लॉट, ये सब चीज़ के बारे में मैंने बताया है ऊपर के। उसके साथ साथ सिंपल प्लॉट, कॉम्प्लेक्स प्लॉट, इसके बारे में आप समझा सकते हैं। ये शॉर्ट आंसर में ही पूछा गया था, तो ये लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि सब कुछ बुक ही से आ रहा है। आप अच्छे से अगर बुक रीड कीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है। कोई भी ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, एनिमल्स, इनएनिमेट एंटिटीज़, कोई भी स्टोरी में या नॉवल में एक कैरेक्टर के बिना स्टोरी नहीं होता है। वो कैरेक्टर एक बहुत एसेंशियल इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर, थीम, प्लॉट, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स में लास्ट ईयर फिर से ये क्वेश्चन आया था, राउंड कैरेक्टर्स बोल के क्वेश्चन आया था। तो फ्लैट कैरेक्टर्स, राउंड कैरेक्टर्स, ये क्या है, ये आप एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स में फ्लैट कैरेक्टर्स और राउंड कैरेक्टर्स दिया गया है। आइदर आप टेबल लर्न कर लो, नहीं तो आप ये डेफिनेशन लर्न कर दो, आइदर और, दोनों में से एक ही चीज़ है। अगर आप अच्छे से देखिएगा तो दोनों में से एक ही चीज़ है, दोनों में से आइदर टेबल नहीं तो डेफिनेशन, दोनों में से एक करना है। अब कैरेक्टराइजेशन भी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टराइजेशन क्या है ये चीज़ आप देख लो। कैरेक्टराइजेशन के लिए कल भी मैंने वीडियो में मैंने ये समझाया था कि कैरेक्टराइजेशन क्या है। कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। मेथड्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन क्या है, नरेटिव और ड्रामेटिक मेथड्स, ये भी आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ फिर से यही चीज़ है, नरेटिव मेथड, ड्रामेटिक मेथड में आइदर टेबल लर्न कर लीजिए नहीं तो डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, जो भी इजी लगे, बट आपको जितने अच्छे से हो पाए उतना अच्छे से आप कर लीजिए। अगर हो सके तो नरेटिव मेथड और ड्रामेटिक मेथड का अगर एग्जाम्पल दे पाए तो भी बहुत अच्छे से आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट आते हैं नरेटिव मोड में। जैसे मैंने नरेटिव का मैंने पहले भी दिखाया था, नरेटिव मोड क्या है इसके बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ नरेटिव मोड्स कैसे करके आप कीजिएगा, कल के आंसर में भी मैंने जब डिस्कस किया था, छोटा सा डेफिनेशन देना है। थर्ड पर्सन में क्या है, थर्ड पर्सन नरेटिव मोड में सी और ही यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल चिनवा अचीव्स थिंग्स फॉल अपार्ट में ये वाला चीज़ है, हिज, ही, थर्ड पर्सन यूज़ किया गया है। तो आप ऐसे करके एग्जाम्पल दे सकते हैं अगर नरेटिव मोड पूछा गया तो। फर्स्ट पर्सन नरेटिव मोड में क्या है, यहाँ पर आई यूज़ किया गया है, ठीक है। वो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से वो लिखा जाता है, ठीक है। इसके बारे में ये सब चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट है। अब लेट सम अप में ये फॉर्म एंड कंटेंट जो मैंने पहले भी बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल में। तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। ये प्लॉट क्या है, कैरेक्टर क्या है और कंटेंट क्या है, ये सब चीज़ मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। आप ये सब चीज़ को मार्क करके एक बार रीड थ्रू कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पर पिकारेस्क का भी दिया गया है, पिकारेस्क क्या है ये चीज़ को आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ग्लॉसरी का पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आप लोग ग्लॉसरी को भी देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए।
ये सब चीज़। अब यूनिट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल 2, कि फिर से ये चीज़ है जैसे मैंने पहले ही बताया था, प्लॉट, कैरेक्टर, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव मोड्स, क्रिटिकल, क्रिटिसिज्म, क्रिटिक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। उसके बाद स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर स्टाइल का ऊपर में एक क्वेश्चन आया था शॉर्ट नोट्स का, तो स्टाइल के ऊपर में आप देख लीजिए कि स्टाइल क्या है, ठीक है। ये लास्ट ईयर का स्टाइल के ऊपर में क्वेश्चन था। ये सारा चीज़ आपको याद नहीं करना है। एक ब्लॉक 1 का ज़्यादातर आपका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझ लेने से ही आपका चलेगा, बट आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ब्लॉक 1 का अच्छा मार्क्स आपको मिल सकता है, 20 मार्क्स का है वो, बहुत स्कोरिंग है वो पोर्शन। टाइम एंड प्लेस का भी लास्ट ईयर टाइम एरिस्टोटल का ये पूछा गया था, टाइम इन अ नॉवल करके पूछा गया था। तो टाइम एंड प्लेस ये 3 यूनिटीज़ ऑफ टाइम, 3 यूनिटीज़ ऑफ बोला जाता है एरिस्टोटल का पोइटिक्स में यूज़ हुआ था। तो शेक्सपियर जो यूज़ नहीं करता था ये सब रूल्स, इसके बारे में बताया गया है। ये चीज़ आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लास्ट ईयर के टाइम में टाइम इन अ नॉवल क्वेश्चन आया था। तो देखिए सारा चीज़ आपको याद नहीं करना है, आपको जो मेन चीज़ है वही चीज़ को आपको मार्क करके आपको पढ़ना है। इसमें आपका टाइम स्किमिंग और स्कैनिंग जो हम लोग सीखे थे बेगला 138 में, या आप लोग उसके ऊपर में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, तो वो चीज़ करके आपको जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ आपको पढ़ना है। आप सारा चीज़ याद नहीं कर पाइएगा, बट उस टाइम में आपको जस्ट समरी लेके आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है और फिर अपने लैंग्वेज में लिखना है। अब थीम क्या है? थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लॉट के बाद थीम क्या है ये इसके बारे में देख लीजिए, थीम क्या है, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल में थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से फॉर्म ऑन कंटेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ में आप देख लीजिएगा। कल हमने देखा था न्यू एरियाज़ ऑफ नॉवल राइटिंग या न्यू ट्रेंड्स इन फिक्शन राइटिंग, क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है। कल क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे, तो मैंने सोचा कि फिर से एक बार इसको हाईलाइट करके आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ताकि जब भी हम लोग ओवरव्यू करेंगे एक बुक का तो आप समझ पाइएगा कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ज़्यादातर लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि क्या पढ़ना है इतना कम टाइम में। आप लोग का कॉन्फिडेंस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ में। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद ये चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो नॉवेल्स ऑफ द डायस्पोरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। नॉवेल्स ऑफ द डायस्पोरा क्या है कि कोई भी अगर इंसान बाहर चले जाता है तो उसके बाद उसका होमलैंड से दूर रहता है, तो उसके बाद उसका डायस्पोरा बोला जाता है। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, नॉवेल्स ऑफ द डायस्पोरा। फिर थर्ड वर्ल्ड नॉवेल्स क्या है ये चीज़ को आप मार्क कर लीजिएगा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट आप पढ़ लीजिएगा कि थर्ड वर्ल्ड नॉवेल्स क्या है। फिर फ्यूचर ऑफ द नॉवल मतलब आज के टाइम में बोला जा रहा है कि नॉवल में क्या चेंजेस आए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी के टाइम में बहुत सारा लिटरेरी जॉनराज अभी डेवलप हुआ है, जैसे पोइट्री, ड्रामा, लॉन्ग और शॉर्ट कमेंट्स, एनालिसिस, ये सब चीज़ का हुआ है। तो बेस्ट एग्जांपल फिक्शन राइटिंग का हेनरी फील्डिंग का था इंग्लैंड में। ये इसके बारे में बताया गया है कैसे करके वो पहले स्टार्ट किया था 18th सेंचुरी में, वो कैसा कौन सा चीज़ वो किया था, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था उसके राइटिंग में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे राइटर्स के ऊपर में बोला गया है। फिर नॉवल इन द 20th सेंचुरी, अगर आप ये चीज़ में देखिएगा कि नॉवल का एक हिस्ट्री बताया जा रहा है कि 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और 18th सेंचुरी के बाद 1920 सेंचुरी में क्या उसका प्रोग्रेशन हुआ या क्या क्या चेंजेस हुए, इसके बारे में ये बताया जा रहा है, ठीक है। नॉवल इन द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, इसके बारे में बताया गया कि पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में नॉवल क्या कैसे करके लिखा जाता था पोस्ट मॉडर्निज्म के टाइम में। फिर नॉवल इन द प्रेजेंट एज, जो कि अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जॉनराज अभी आया है, ठीक है। तो नॉवल का आस्ते आस्ते वो चीज़ चेंजेस में आया है। फिर पोस्ट कॉलोनियल नॉवल, लास्ट ईयर भी ये लास्ट सेशन भी जो हम लोग का दिसंबर 2021 का था उसमें भी पोस्ट कॉलोनियल नॉवल दिया गया है। अब आप देख सकते हो कि पोस्ट कॉलोनियल नॉवल क्या है। पोस्ट कॉलोनियल नॉवल का जो है वो आप एक एग्जांपल दे सकते हैं। पोस्ट कॉलोनियल नॉवल एक हम लोग का है थिंग्स फॉल अपार्ट, तो थिंग्स फॉल अपार्ट का पोस्ट कॉलोनियल नॉवल जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में ही यहाँ पर दिया गया है या पूछा गया है। फिर फील्डिंग और रिचर्डसन के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, ये चीज़ का आप देख सकते हैं कैसे करके वो नॉवल के बारे में बहुत सारा चीज़ किए हैं। अब मेन पार्ट जो है फ्यूचर ऑफ द नॉवल, जो अभी का जो प्रेजेंट है, पॉपुलर फिक्शन और जर्नलिस्टिक राइटिंग, बहुत सारा टाइप्स ऑफ राइटिंग हो गया है, मीडिया राइटिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग आ गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारा राइटिंग अभी चेंजेस आया है, बहुत सारा ट्रैवलॉग, बायोग्राफी, ऑटोग्राफी, लॉन्ग शॉर्ट ऐसे, ये सब चीज़ के कारण
नावल का जो है वो एक डिक्लाइन मोड किया, क्योंकि नावल बहुत बड़ा है और आजकल के टाइम में आप लोग समझ पा रहे हैं कि उतना लोगों के पास पेशेंस नहीं है ये चीज़ को पढ़ने के लिए, और नावल का एक सेम चीज़ वो रिपीट होता है। तो एक नया जॉनरा जो होता है उसके हिसाब से शॉर्ट वे में बहुत सारा राइटिंग अभी आ गया है, तो इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर कुछ कुछ राइटर्स हैं जो कि नावल के बारे में यहाँ पर लिखा गया है जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्राइसिस ऑफ द नावल फॉर्म में क्या वर्ल्ड में क्या क्या डिफरेंट राइटर्स कोशिश किए थे कि उसको रिवाइव कर पाए। और सबसे मेन पार्ट यहाँ पर पूछा गया है कि अगर पूछा गया कि फ्यूचर ऑफ द नावल क्या नावल ख़त्म होने जा रहा है 20th सेंचुरी के बाद या 21st सेंचुरी के बाद, तो फिर ये चीज़ पूछा गया है कि नावल आज भी कुछ कुछ नावल्स हम लोग है, जस्ट द थिंग इज़ दैट डिफरेंट और भी चीज़ बेटर हो चुका है, राइटर्स अभी बहुत एडवांस्ड हो गया है, टेक्नोलॉजिकल एरा है, तो डेफिनेटली थोड़ा डिक्लाइन किया है नावल का। बट मेन चीज़ है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो नावल अभी भी आपको बहुत सारे नावल्स मिलेंगे, और अभी भी हम लोग इसके बारे में नावल्स पढ़ भी रहे हैं। इसका मतलब यही है एट द एंड ऑफ द डे जब अगर हम लोग नावल के बारे में रीड कर रहे हैं या उसके बारे में पढ़ाई करने के बाद जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ पाओगे कि नावल अभी भी पूरी डिक्लाइन नहीं किया है। तो ये चीज़ है, ये वाला हो गया ब्लॉक 1 यूनिट 4 तक ये चीज़ था। अब हम लोग आएंगे ब्लॉक 2 यूनिट 2, ब्लॉक टू यूनिट 1 करके हम लोग आएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट जो नावल है हम लोग का, दी अवेकनिंग बाय द राइटर एडना पॉन्टलियर। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि क्या है नावल और क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 लोकेटिंग दी अवेकनिंग बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। इंटेलेक्चुअल सेटिंग ऑफ दी अवेकनिंग, कहाँ ये हुआ था, कौन सा डिकेड में हुआ था, ठीक है, कौन सा टाइम में हुआ था। ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ जानना है कि नावल कौन से टाइम में हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है कि आप ओवरव्यू पढ़ लीजिएगा क्योंकि घुमा फिरा के एक ही चीज़ दिया गया है, बट आपको टाइम मिले तो थोड़ा से अच्छे से रीड कर लीजिएगा। कुछ चीज़ जैसे 19th सेंचुरी सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ आप देख लीजिए 19th सेंचुरी ब्रिटेन में कैसा था अवेकनिंग का। लोकेशन राइटर एंड द नॉवल का क्या लोकेशन है, ये चीज़ के बारे में बताया गया है कि कहाँ से राइटर था और नावल कहाँ पर लिखा गया है, इसके बारे में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया जा रहा है। ये याद रखिएगा, हर ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट 1 और यूनिट 2 जो भी स्पेशली नॉवेल्स के लिए है इस बुक में, या इधर हिस्ट्री है या कहाँ पर कौन सा सिचुएशन में है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया गया है। यूनिट 3 और यूनिट 4 आपका मेन बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। अब सिंबलिज्म इन दी अवेकनिंग, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद से इस बार फिर से आ जाए, और अगर नहीं भी आएगा तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं क्योंकि सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप अगर ये नहीं आता है तो डिफरेंट दूसरा क्वेश्चन ज़रूर आएगा क्योंकि नॉवेल बहुत बड़ा है और बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्या सी प्ले करता है इन द नॉवल, शायद एक नॉवल का सिंबलिज्म के बारे में आप एक बार खाली जस्ट रीड कर लीजिए उसके बारे में कि क्या दिया गया है, नहीं दिया है। जैसे सी है, बर्ड्स है, ठीक है, फिर म्यूज़िक है, पेंटिंग है, बहुत सारा चीज़ है। फिर केट चॉपिन्स ईवड़े, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इसका राइटिंग के ऊपर में है, क्या क्या चीज़ वो लिखा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बैकग्राउंड रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया ब्लॉक 1 का यूनिट, ब्लॉक 2 का यूनिट 1 जहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और राइटिंग के बारे में बताया गया है। फिर आता है कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द अवेकनिंग, यहाँ पर अवेकनिंग के बारे में बताया गया है। ये अवेकनिंग का पूरा जो समरी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है, ये स्टार्टिंग आपका जो है ये पूरा चीज़ समरी आपको रीड करके समझना है। ठीक है, ये जो अवेकनिंग है इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या है, नहीं है। इसको 2-3 बार रीड कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये एक क्ले के टाइप का है, आप जैसे उसको शेप दीजिएगा वैसे ही आपका आंसर बनेगा। तो आपका समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड के हिसाब से और सब चीज़ के लिए। तो कॉन्टेक्चुअलाइज करने के बारे में, जैसे पिजन हाउस हुआ और भी चीज़ है, इसके बारे में आपको समझाना है। ठीक है, अब बायोग्राफिकल अप्रोच टू दी अवेकनिंग। बायोग्राफिकल अप्रोच मतलब एक नॉवेल के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में राइटर का जो बायोग्राफी है या उसके लाइफ में क्या क्या घटा है, क्या क्या चीज़ है, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो केट चॉपिन, उसका पहला नाम था केट ओफ्लैहर्टी, ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप मार्क कर लीजिएगा बुक में।
अगर आप लिख रहे हैं तो ये चीज़ समझा पाइएगा। यहाँ पर बैकग्राउंड है, बहुत अच्छे से आप समझ पाइएगा कि क्यों वो ये चीज़ लिखा था, और ये चीज़ आप समझ पाइएगा कि ऑस्कर चॉपिन का जो था वो उसका डेथ हो गया था, उसके बाद कैसे करके वो 6 चिल्ड्रन को रेज़ किए थे, इसके बारे में ही ये उसका लाइफ स्टोरी है। और यहाँ पर क्रियोल बैकग्राउंड जो है, लास्ट सेशन में भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रियोल बैकग्राउंड। ठीक है, न्यू ऑर्लियंस और क्रियोल बैकग्राउंड का है। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चीज़ के लिए कि एडना पॉन्टलियर और केट चॉपिन का क्या क्या सिमिलरिटीज़ है ये चीज़ में, या लास्ट जो क्लास था उसके बारे में भी मैंने ये समझाया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ को ज़रूर याद से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है कि एडना पॉन्टलियर और जो केट चॉपिन है उसके बारे में ये क्वेश्चन बन सकता है इस सेशन के लिए। अब क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज टू द अवेकनिंग, सेम ये वाला यूनिट 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो अवेकनिंग था वो वाइडली एक्सेप्ट नहीं होता था जो सोसाइटी में जब इसको लिखा गया था। अगर आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ोगे, ये चीज़ को मार्क करके आप थोड़ा थोड़ा करके आप इसको पढ़िएगा, याद रखिएगा। अगर क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज आए तो आपको ये सारा चीज़ को समझाना है कि क्रिटिकली अप्रिशिएट या क्रिटिकल अप्रिशिएशन अगर क्वेश्चन आए नॉवेल का, तो ये चीज़ आपको समझाना है। आप एक जिस्ट में ओपनिंग का जो चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वही चीज़ आपको देखना है कि कैसे करके वो चेंजेस हुआ। पहले उसको उतना वाइडली एक्सेप्ट नहीं होता था, बट लेटर ऑन, अगर आप यहाँ पर देखिएगा, लेटर ऑन वो थोड़ा थोड़ा करके एक्सेप्ट होते गया। ठीक है, पहले उसको वाइडली एक्सेप्ट नहीं होता था, अगर आप देखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो वुमेन्स फ्रीडम, फिर इनफिडिलिटी और बहुत सारा चीज़ के बारे में है, तो इसीलिए ये चीज़ को पहले एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, बट स्लोली उसको एक्सेप्ट किया गया है। मतलब उसका जो पॉपुलराइजेशन जो था वो बहुत बढ़ गया। और ये बहुत सारे क्रिटिक्स बोलते भी है कि केट चॉपिन का जो राइटिंग है द अवेकनिंग, इट वाज मच अहेड ऑफ द टाइम, मतलब बहुत अहेड, मतलब बहुत पहले ये लिखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये क्रिटिकल अप्रिशिएशन का जो चीज़ है ये आप देखिए कि कैसे चेंजेस हुआ है, तो ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्लॉक 4 में। तो क्रिटिकल अप्रोचेस टू द अवेकनिंग, फेमिनिस्ट, साइको एनालिटिकल और अदर्स। अब अवेकनिंग कौन सा एज में था, ये चीज़ आप देख लीजिए कि विक्टोरियन एज के टाइम में था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एज में लिखा गया है, कोई भी नॉवल कौन सा एज में है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उस टाइम में आप समझ भी पाइएगा कि कैसे करके एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर एथनिसिटी के पीपल को कैसे करके ट्रीट किया जाता है। तो एक एज के टाइम लाइन के ऊपर में भी कैसे करके ट्रीट होता था, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझ पाइएगा। फेमिनिस्ट अप्रोच टू द अवेकनिंग, ये लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था दिसंबर 2021 में, अगर आप पेपर देखिएगा तो वहाँ पर दिया है फेमिनिस्ट रीडिंग टू द अवेकनिंग। तो ये ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो ये लास्ट ईयर आया था। ठीक है, उसके बाद साइको एनालिटिकल अप्रोच टू द अवेकनिंग, जहाँ सिगमंड फ्रॉइड और यहाँ पर और एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है, तो ये ईगो, सुपर ईगो, ये सब चीज़ के बारे में बताया गया है, और एड के बारे में है, ये ईडी के बारे में है। तो ये बहुत आईडी के बारे में है, आईडी, सुपर ईगो और ईगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये साल का क्वेश्चन के लिए, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और कार्ल गुस्ताव जंग, ये दो साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिस्ट है इसके बारे में बताया गया है। तो साइको एनालिटिकल अप्रोच इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबलिज्म फिर से दिया गया है, जैसे 1.5 में दिया गया था, फिर से सिंबलिज्म का आ गया, जहाँ बर्ड और भी चीज़ है, ये सब चीज़ दिया गया है। लास्ट सेशन भी ये सेम क्वेश्चन आया था, सिंबलिज्म क्या है, तो ये बताना था। तो और यही था ब्लॉक 2 के बारे में ये चीज़ था। तो साइकोएनालिटिकल अप्रोच, फिर क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज, ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। फिर एडना पॉन्टलियर और केट चॉपिन का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी आपका डायरेक्ट शायद नहीं भी पूछे, बट एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप नॉवल करते हैं तो कोई भी नया नाम जब भी आप रीड करते हैं तो उसको रीड करके अंडरलाइन कर लीजिएगा। नाम्स जो है, जो भी कैरेक्टर्स जो है, उसके बारे में आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर स्केच आ सकता है, अगर कैरेक्टर स्केच नहीं भी आया तो भी आपको नाम का स्पेलिंग गलत नहीं करना है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि वो उससे एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। और इंट्रोडक्शन आप देख लीजिएगा नॉवल के टाइम में,
जो भी इंट्रोडक्शन है, कौन सा एज में है, कौन सा टाइम में लिखा गया है, कौन राइटर है, ये सब चीज़ ना आपके आंसर में फिलर्स की तरह काम करता है। कोई आंसर आपको पता नहीं है, अगर एटलीस्ट मिनिमम आपका इंट्रोडक्शन में छोटा पड़ रहा है आंसर, तो आप उसको इंट्रोडक्शन में भर सकते हैं। तो ये सब ट्रिक्स है कैसे करके आप आंसर को अच्छा बना सकते हैं, और आप आंसर को समझ के आंसर कीजिएगा, जो आपका इजी रहेगा वही कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस रहेंगे। मिनिमम 2 नॉवेल्स आपका करना ही करना है, ठीक है। चलिए आते हैं अब ब्लॉक 3 में। इसीलिए मैंने आज ओवरव्यू, लास्ट एक फाइनल ओवरव्यू मैंने दिया है। चलिए अब आएंगे ब्लॉक 3 जो कि है आपका पड़ाजा। और पड़ाजा के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो पड़ाजा गोपीनाथ मोहंती के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो गोपीनाथ मोहंती तो ये चीज़ को आपका उड़िया लैंग्वेज में लिखा था, बट विक्रम के दास ये 1987 में इसको ट्रांसलेट किया था। तो ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन के लिए, आपके आंसर के में बहुत अच्छे से काम आएगा। फिर बायोग्राफिकल डिटेल्स गोपीनाथ मोहंती क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उड़िया नॉवल के हिसाब से, ये एक असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन था, उड़िया नॉवल के हिसाब से कैसे करके ये है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा विच लिटरेचर्स हैव इन्फ्लुएंस द उड़िया नॉवल। तो उड़िया नॉवल क्या है नहीं है पड़ाजा, वो उसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। पड़ाजा स्टोरी का आउटलाइन फिर से एक चीज़ है, जैसे मैंने बोला था कि जब भी आप नाम देखते हो, जिल्ली बिल्ली, ठीक है, मंडिया टिकड़ा, ये सब जो सन्स है, ठीक है। फिर सुकरू जानी, ठीक है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का सरसूपादाड़, ये सब चीज़ का जो चीज़ है ये आउटलाइन कर लीजिएगा, ये सब डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ देख लीजिएगा, द नॉवल कंसिस्ट ऑफ 114 चैप्टर्स। यहाँ पर पूरा एक आउटलाइन दिया गया है बहुत अच्छे से। अब आप सारा चीज़ तो याद नहीं कर पाइएगा, बट आपको समरी रीड करके समझना है कॉन्टेक्स्ट में। जैसे मैंने पहले भी बताया था, डायरेक्ट समरी तो नहीं पूछेगा, बट ये एक क्ले टाइप का है। जैसे क्ले, कोई भी क्ले को आप अगर अच्छे से मोल्ड कीजिएगा तो वो फॉर्म अच्छे से करेगा। तो ये क्ले टाइप का सिचुएशन है, जहाँ पर आपको रीड करके समझना है कि कैसे करके कैरेक्टर्स दिया गया है, नहीं दिया गया। जैसे सुकरू जानी का एक कैरेक्टर आप देख लीजिएगा कैसे करके वो चेंजेस होता है, ठीक है, गोटी एंड ऑल दीज थिंग्स। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से रीड कर पाइएगा, क्योंकि समरी के बारे में मैं डीपली मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि समरी आप लोग शायद अच्छे से पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्ट नहीं आते, कभी कभी ट्विस्टेड भी आ सकता है, शायद उसका एक पर्टिकुलर वे में भी आपका बताया जा सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि समरी क्या है और ये सब चीज़ क्या है, बट ऑल्दो अगर आप समरी पढ़ के जाते हैं तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा, आपके पास एक आउटलाइन रहेगा कि कैसे करके उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, फिर हम लोग जाते हैं ब्लॉक 3 यूनिट 2 में, जहाँ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इकोनॉमिक प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स, ये वाला भी लास्ट सेशन में आया था दिसंबर 2021 एग्ज़ाम में। इकोनॉमिक फ्लाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे करके जो फ्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स है इसके बारे में बताया गया है, जो बहुत ही सिंपल पर्सन्स है और उन लोग उतना लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, और कैसे करके लोग मतलब जो बहुत ही आपका एडुकेटेड पर्सन्स है, कैसे करके उन लोग को ठगाते हैं। जो ऑफिशियल्स जो हैं वो सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे करके उन लोग को ठगाते हैं, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ लीजिएगा। तो जैसे सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन द नॉवल, लास्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन आया था, ये फ्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स और सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन द नॉवल, ये वाला अगर आप देखिएगा, एक सेक्शन बी में फ्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स था, और सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन द नॉवल आपका सेक्शन सी में था। तो एक 12 मार्क्स का था फ्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स, और सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन द नॉवल आपका 20 मार्क्स का था। तो आप देखिए कैसे करके सेम चीज़, जस्ट हेडिंग एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दिया गया है, उन लोग पूछ लिया जो हेडिंग में था, ठीक है। समरी छोड़ के उन लोग कॉन्टेक्स्ट के आजू बाजू भी देखता है। तो समरी आपका जस्ट फॉर्मेशन के लिए है, अगर आप उच्च समरी को बहुत अच्छे से कीजिएगा तो बहुत अच्छे से वो चीज़ को समझा भी पाइएगा, ठीक है। सबॉल्टन वॉइस भी लास्ट टाइम में था, जो कि एंटोनियो ग्राम्स्की के ऊपर में बोला गया है, कि बताया गया है कि इन्फीरियर रैंक का क्या है। तो ये चीज़ के बारे में सबॉल्टन वॉइस का है। मेन चीज़ जो है, ये चीज़ आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये 3 पार्ट्स, ये सेम चीज़ यहाँ से दिया गया, ऑल्दो क्वेश्चन डायरेक्ट समरी के ऊपर में नहीं पूछा था, बट ये जो मेन 3 कॉन्टेक्स्ट है वो उसके बारे में ही लास्ट ईयर क्वेश्चन दिया था। तो आप समझ पा रहे हैं कि बुक से ही सारा क्वेश्चन आता है, और आप अगर बुक को पढ़ के जाइएगा तो आपका बहुत सारा चीज़ आप समझ पाइएगा या समझा पाइएगा
आंसर शीट में। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक को रीड करके जाते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छा होगा। आप एक बार अच्छे से समरी पढ़ लीजिए, समरी पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग समरी इसीलिए हम लोग नहीं समझ पाते क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारा चीज़ है और कैसे करके हम लोग इतना शॉर्ट टाइम में करेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सिस्टमैटिक वे में स्टडी कीजिएगा, कोई जो मेन जो कैरेक्टर्स है उसके बारे में अगर आप लिख के उसको याद करके कीजिएगा तो बहुत अच्छे से आप समझ पाइएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो कॉन्फिडेंस को है उसको बरकरार रखिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा जब भी आपका एग्ज़ाम्स हो, 25 को जब आपका एग्ज़ाम हो। ठीक है, अब नॉवेल क्या है, ये जो मेन चीज़ है, क्या नॉवेल क्या किस आधार पे ये चीज़ है, ये आप देख लीजिए। सुक्रू जानी के ऊपर में है। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर वो अपना घर बार सब कुछ पैसा सब कुछ खो देता है रिच पीपल की वजह से, और उन लोग ठगाते रहते हैं। ठीक है, द नॉवल इज़ ओनली अबाउट और नॉट ओनली अ टेल ऑफ ह्यूमन इमोशंस, स्ट्रगल्स एंड सफरिंग। तो ये चीज़ आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बारे में आप ये ऐड कर सकते हैं लेट अस सम अप में। लेट अस सम अप भी आप देख सकते हैं। लेट अस सम अप आपका बहुत अच्छे से कॉन्साइज वे में एक यूनिट को समझाता है। तो आपके पास टाइम अगर बहुत कम है, अगर आपको कुछ समझ पढ़ के अगर थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है तो ये चीज़ समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉवेल है तो नॉवेल ऑफ कोर्स थोड़ा बड़ा ही होगा, और बड़ा होने के कारण में आपका वो उसमें बहुत सारा कैरेक्टर्स रहेगा। बट जैसे मैंने बताया, समरी आपको समझना है, आपको पूरा रट्टा नहीं मानना है, क्योंकि लिटरेचर आप जितना अच्छे से रीड कीजिएगा, यू हैव टू रीड अ पर्टिकुलर थिंग। आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो एक चीज़ को आप टाइम दीजिए, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, आधा घंटा आप उसको खाली रीड करते रहिए। जैसे सपोज डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ थीम, ये क्या है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ है, ये चीज़ आप देख लीजिए कि हर चीज़ में एक थीम रहता है। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस का क्या थीम है, मनी एंड मैरिज। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ में फॉर सपोज अगर डेफिनेशन नहीं दे पाते हैं तो एग्जाम्पल को एकदम 100% याद करके जाइएगा। ठीक है, अगर याद रहता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका आंसर को ना वो बहुत अच्छे से उसको डिफ़ाइन करता है। अगर आप कोई चीज़ में थोड़ा से भी डेफिनेशन में इधर उधर हो जाता है, पूरा चीज़ आप डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं, तो आपका एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर देगा। फिर आपका आता है थीम ऑफ पड़ाजा। थीम ऑफ पड़ाजा क्या है? ठीक है, यहाँ पर ट्राइब के बारे में बताया गया है। ठीक है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, इसके बारे में बताया गया, आप देख लीजिए यहाँ पर थीम क्या है। ठीक है, यहाँ पर जॉयज़, एस्पिरेशंस, होप्स एंड फेलियर्स, यही इसके बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। आप अगर रीड कीजिएगा तो सारा चीज़ बुक में ही है और बुक से ही क्वेश्चंस आता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने जब कल भी क्वेश्चन जब डिस्कस किया था कि सॉन्ग्स एंड डांस के ऊपर में है, तो सॉन्ग्स एंड डांस के ऊपर में ट्राइबल लाइफ में कैसे करके इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि ये सब इंटरकनेक्टेड है। अगर आप देखिएगा कि कैसे करके सिंपल पीपल जो अपना जो रोज़ी रोटी खाली कमा के खुश रहना जानते हैं, जो कि मतलब ज्वेलरी बहुत सिंपल पहनते हैं, ठीक है, गाना और सॉन्ग्स करके अपना ये करते हैं, तो ये सब सारा चीज़ ना इंटर रिलेटेड है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सारा चीज़ इंटरकनेक्टेड है। अगर आप चीज़ों को देखिएगा तो बहुत सिंपल लाइन है ये चीज़ को। ठीक है, तो सॉन्ग्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, ठीक है, जब मैंने पेपर एनालिसिस किया था। सो सॉन्ग्स क्या है, आप सॉन्ग्स का एटलीस्ट अगर आपको सॉन्ग्स पूरा नहीं याद रहता है, ऑफ कोर्स इतना शॉर्ट टाइम में आपको सारा चीज़ याद नहीं रहेगा, अगर नहीं रहता है तो आप इसका जो हेडिंग्स है, वर्क सॉन्ग्स, फेस्टिवल सॉन्ग्स, पड़ाजा सॉन्ग्स, ये सब जो चीज़ है, ये सब चीज़ आपको याद करके रखना है। ठीक है, एटलीस्ट हेडिंग आप याद करके रखिए, या एक सॉन्ग का 4 लाइन आप अगर हो सकता है तो आप देखिए, नहीं तो मेन जो हेडिंग है उसी को आप याद करके वो बोल दीजिएगा कि ये सॉन्ग आपका है। ठीक है, और यहाँ तक आपका रहेगा। तो आपको खाली डिफ़ाइन करना है कि सॉन्ग्स के हिसाब से कैसे यूज़ होता है। ठीक है, पड़ाजा क्या है? पड़ाजा एक टाइप का नॉवेल भी है और पड़ाजा एक ट्राइब भी टाइप का है, तो इसके बारे में बताया गया है। व्हाट इज़ पड़ाजा, ये चीज़ का है। डिफाइनिंग प्लॉट, फिर से यही चीज़ है, प्लॉट थीम क्या है। ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आपका बुक्स में फिर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ चीज़ या आंसर्स रिपीट होता है। प्लॉट ऑफ पड़ाजा, पड़ाजा का प्लॉट क्या है ये चीज़ देख लीजिए। पड़ाजा का प्लॉट क्या क्या चीज़ है ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि कैसे करके सुक्रू जानी का एक डाउनफॉल होता है। सारे जन रादर उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, जहाँ उसका अगर सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड में भी अगर देखिएगा, या उसका जो सपोर्ट है कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप देखिएगा, प्लॉट का ऊपर में आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ भी आप देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा।
ठीक है, प्लॉट ऑफ पराजा। ठीक है, लेट अस सम अप हो गया यहाँ पर। नॉवल का ट्रांसलेशन, अब यहाँ पर एक मेन चीज़ है पराजा इंग्लिश एज अ ट्रांसलेटेड नॉवल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पराजा जो है इंग्लिश ट्रांसलेटेड नॉवल में कैसा था। पहला तो ये उड़िया का नॉवल था, जैसे मैंने पहले बताया कि ये आपका गोपीनाथ मोहंती ने ये चीज़ को समझाया था। गोपीनाथ मोहंती से ये वाला आपका विक्रम के दास ने दिया है, तो इसके बारे में बताया गया है कि कैसे करके वो ट्रांसलेट किए हैं। ऑल्दो वो ट्रांसलेट करने के बाद पूरी 100% तो सेम टू सेम नहीं होगा, बहुत सारा वर्ड्स में चेंजेस तो होंगे ही, ट्रांसलेशंस में ऐसा ही होता है। 100% वो आपका सेम टू सेम नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है। ठीक है, पोएटिक प्रोज ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसका जो नॉवेल जो है ना, इसका जो जॉनरा है, ये कैसे करके लिखने का टाइप है, वो एक प्रोज पोइट्री टाइप का है, मतलब यहाँ पर पोएम और प्रोज के टाइप में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया गया है जो कि ओरिजिनली आपका इंग्लिश और ये चीज़ का है, उड़िया लैंग्वेज में है, आप देख लीजिएगा। अब सॉन्ग्स के बारे में फिर से, ये सॉन्ग्स के बारे में फिर से दिया गया है, सॉन्ग्स कैसे करके एक चीज़ में यूज़ किया जाता है, तो फिर से सॉन्ग के बारे में दिया गया है, आप ये चीज़ को मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अपने बुक में। और सॉन्ग्स के बाद यहाँ पर आता है इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पराजा, तो पराजा एज अ होल कैसे करके यहाँ पर दिया गया है, ये चीज़ के बारे में लिखा गया है ये चीज़ में। ठीक है, पराजा ट्राइब्स में इंडियन टेल ऑफ सर्वाइवल, यहाँ पर आप अगर जान पाओगे कि बहुत सारा जो लोअर कास्ट होते हैं या जो पीपल होते हैं, अगर आप पोएट्री फॉर मतलब मार्जिनलाइज्ड पीपल के बारे में अगर आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा ये चीज़। ठीक है, जैसे दलित्स होते थे, ठीक है, वैसे ही ट्राइब्स के होते हैं जो कि बहुत ही डिप्राइव्ड होते हैं, पीपल एडवांटेज लेते हैं, उन लोग को कॉलोनाइज करते हैं या और कुछ उन लोग के ऊपर में एडवांटेज लेते हैं। अब कॉलोनाइज के बाद बात आ गए तो लास्ट जो है ब्लॉक, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग का पूरा नॉवेल ख़त्म हो जाएगा। तो आई नो वीडियो आज बहुत लंबा हो चुका है, बट क्योंकि मेरे को ये चीज़ को समराइज़ करना था, ओवरव्यू एक देना है बुक का, तो मैंने बहुत जल्दी ये वीडियो बनाया है ताकि ये उतना लंबा भी ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स है। जस्ट मेन जो कॉन्टेक्स्ट है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इसके बारे में ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और इससे आपके लिए अच्छा होगा। ये याद रखिएगा कि इसका जो ब्लॉक 4 का है, ये पहला, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो अफ्रीकन के बारे में बताया गया है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चंस फिर भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कोई भी जगह से आ सकता है। प्री कॉलोनियल अफ्रीका कैसा था, फिर कैसे करके यूरोपियन कंट्रीज़, जैसे पोस्ट कॉलोनियल नॉवल में आप बोल सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो था वो सब कैसे करके अफ्रीका के ऊपर में कॉलोनाइज़ करने लग गए, फिर उन लोग के ऊपर में एक प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म के बाद कैसे करके लोग अपने रिलीजन जो क्रिश्चियनिज्म जो था वो उसको थोपने लगे इन लोग के ऊपर में, उन लोग का जो नॉर्मल जो कल्चर और रिलीजन था उसको मतलब डिप्लीट करने लगे। ठीक है, तो इसके बारे में ही ये सब चीज़ बताया गया है। मैं जल्दी से ब्लॉक 4 यूनिट 1 को मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, बट वो रीड करना है, उसको पूरा याद नहीं करना है, बट जस्ट रीड कर लीजिएगा कि क्या है, एक बार जस्ट रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लॉक 4 यूनिट 2 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अर्ली नाइजेरियन राइटिंग्स एंड द नाइजेरियन नॉवल इन इंग्लिश, ये चीज़ में दिया गया है। ठीक है, राइटिंग लिटरेचर इन हौसा। ठीक है, यहाँ पर कैसे करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ में दिया गया है, ये चीज़ थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, राइटिंग्स इन इंग्लिश, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, फिर नाइजेरियन नॉवल इन इंग्लिश, जैसे मैंने बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो एक लिटरेरी इंपोर्ट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो आमोस टोटुला साइप्रियन इक्वेंसी, आई थिंक सो ये दिसंबर सेशन में भी ये चीज़ आया था, तो आप देख लीजिएगा जी ये चीज़ फिर से। अब चिनुआ अचीबा के बारे में हम लोग आते हैं। चिनुआ अचीबे जो है ये एक नाइजेरियन नॉवेलिस्ट है और इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि ये इंट्रोडक्शन में बहुत काम आता है, स्पेशली 20 मार्क्स का आंसर्स में, क्योंकि इसमें आप अगर थोड़ा इंट्रोडक्शन दे के फिर आंसर्स में डाइव इन करें तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर जो बिगिनिंग एंसेस्टर वर्शिपर, ठीक है, चिनुआ अचीबे खुद को एंसेस्टर वर्शिपर हिसाब से बोला जाता था। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा थिंग्स फॉल अपार्ट के बाद में एक सीक्वल भी है, नो लॉन्गर एट ईज और एडो ऑफ गॉड, मतलब उसके बाद और भी नॉवेल्स है। तो नॉवल का ये ख़त्म नहीं हुआ है, ऑल्दो हम लोग खाली थिंग्स फॉल अपार्ट ही पढ़ रहे हैं, बट इसके साथ साथ और भी जो वर्क्स है चिनुआ अचीबे का यहाँ पर दिया गया। तो राइटिंग्स ऑफ चिनुआ अचीबे दिया गया है। हर एक नॉवल के पहले आप देखिएगा राइटिंग, बैकग्राउंड, उसका बायोग्राफी, ये सब चीज़ के बारे में बताया गया है। तो उसको जस्ट रीड करना है, पूरा चीज़ याद नहीं करना है कौन से साल में। अगर आपको जो मेन जो लगता है उसको जस्ट स्किम करके स्कैन करना है, ठीक है। जो हम लोग बेगला 138 में जैसे हम लोग पढ़े थे, थोड़ा पढ़ के उसको समझ लीजिएगा। सारा चीज़ तो याद नहीं होता है, बट आपको उसका कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि कौन राइटर कैसे टाइप का लिखता था, कैसा कौन सा एज में लिखता था, और कैसे कौन सा चीज़ वो लिखा है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिखा है या कौन सा रीज़न से लिखा है, ठीक है। अब आते हैं ब्लॉक 4 यूनिट 3 और 4 में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब ये वाला इंट्रोडक्शन अगर आप देखिएगा तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखिएगा तो यहाँ पर चिनुआ अचीबे कब लिखा था, क्या लिखा था, ठीक है। 1958 में ये नॉवल लिखा गया था, ठीक है। और ये वाला 25 चैप्टर्स में है। ये याद रखिएगा, ये जो 25 चैप्टर्स या 114 चैप्टर्स, ये जो भी चीज़ है, ये सब लिखने से आपका अच्छा होता है आंसर, स्पेशली इंट्रोडक्शन के लिए जितना आप लिख पाइएगा, ठीक है। ये सब चीज़ को अंडरलाइन करके रखिएगा कितना सारा चीज़ का है। फिर विलेज क्या है, ठीक है, फिर ओकोंको, ये सब स्पेलिंग आप देख लीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिल सकता है। और स्कोर करना भी ईजी है, जब तक कि आप सारे आंसर्स को अटेम्प्ट करें। जितना आप अटेम्प्ट कर पाइएगा, जितना आप लिख पाइएगा, उतना आपका आंसर में मार्क्स भी उतना ही अच्छे से मिलेगा। यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। मैंने बहुत जल्दी स्क्रॉल डाउन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपका समरी स्टार्ट होता है। और अब जब समरी आप देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, समरी आपका पूरा यहाँ पर बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है, ठीक है। ब्लॉक 2 यूनिट 3 में ये चीज़ को आपको समझना है, और समझने के बाद स्पेशली इसमें कैसे चेंजेस होता है, ठीक है। जैसे ओकोंको कैसे करके एक माइटी वॉरियर से, ठीक है, माइटी जो एक फाइटर जो था, उसके बाद कैसे करके उसका डाउनफॉल होता है, उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था ओकोंको के बारे में, ठीक है, कि कैसे करके वो अपना डाउनफॉल, जो कि मैन वुमेन रिलेशनशिप है, उसके बारे में दिया गया है। आप देखिएगा ब्लॉक 4 यूनिट 4 में ये चीज़ क्वेश्चन है। ये साल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी हम लोग ये क्वेश्चन किए थे ब्लॉक 2 यूनिट 4 में कि सिंप्लिसिटी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिंपल टेल ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ एन ऑब्स्टिनेट मैन, डिस्क्राइब और स्टेट योर इनपुट, ये ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट में से ही आंसर दिया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट समरी बहुत ही कम पूछा जाता है। आपको समरी के ऊपर में आपको नहीं देके आपको थोड़ा क्वेश्चन घुमा के देगा, क्योंकि इट इज़ अ नॉवल एंड सिंस बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट हु इज़ लर्निंग लिटरेचर, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ ही सकता है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि कैसे करके सिंप्लिसिटी है, ये सिर्फ राइज एंड फॉल ही है कि नहीं, इसके बारे में बताया गया है, बहुत अच्छे से लिखा गया है। थोड़े से आप खुद समझ के ये चीज़ को लिख दीजिएगा। यूनिवर्सलिटी, ये यूनिवर्सलिटी मतलब ये नेशनल वे में भी ये चीज़ था। कल मैंने ये डिस्कस किया था क्वेश्चन, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर मैन वुमेन रिलेशनशिप, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। फोक मटेरियल, प्रोवर्ब, सेइंग एंड मेटाफर्स, ये भी लास्ट ईयर आया था। इसीलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ये यूनिवर्सलिटी और ये वाला चीज़ आपका ये साल आ सकता है, सिंप्लिसिटी, इसके बारे में ही क्वेश्चन को रिफ्रेम करके आ सकता है, ठीक है। लैंग्वेज एंड स्टाइल, कौन सा लैंग्वेज और कैसे स्टाइल यूज़ किया गया है, इसके बारे में भी बताया गया है कि लैंग्वेज और स्टाइल कैसे यूज़ किया गया है लाइफ में, स्पेशली ये थिंग्स फॉल अपार्ट में, ठीक है। और फाइनली ये लेट अस सम अप, ठीक है। तो यही था हम लोग का कोर्स, और आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ आए। और मैंने ये फिर से एक ओवरव्यू इसीलिए मैंने किया था कि ताकि आप लोग समझे कि सारा चीज़ बुक से ही आता है, ठीक है। बस आपको ये चीज़ को पढ़ना है और समझना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और जितना हो सके अपना क्वेश्चन को फुल अटेम्प्ट करना है। जितना आप लिख पाइएगा उतना ही आपको मार्क्स मिलेगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ BGC 134 फॉर द अपकमिंग सेशन ऑफ June 2022 term and exam on 25th of July. Thank you so much. Have a nice day and all the very best again.